اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيب. میں ابھی بلا تاخیر ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب سے ملتمس ہوں وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں. اور الحمدللہ خوشخبری ہے کہ ہمارے تمام کے تمام مہمان یہاں پہنچ چکے ہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب مدظل العالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. سید السعادات سید عطا اللہ شاہ ثالث بخاری دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اسی طرح مولانا امیر حمزہ صاحب آپ کے نظروں کے سامنے ہیں. حافظ مولانا نعیم قریشی صاحب وہ بھی جلوہ افروز ہیں. اور مولانا امیر حمزہ صاحب کے بعد انشاءاللہ الرحمن کوشش ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں. آپ اس طرح دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں. جو باہر حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑا سا ماحول بن جائے اور ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو سٹیج پہ لے آئیں. میں بھی ملتمس ہوں حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب سے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما ضلع رحیم یارخان شہر کے مقتدر اور جید علماء کرام، خصوصاً ہمارے اساتذہ کی عمر کے انتہائی علمی عملی شخصیت مولانا عبدالغنی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، آج کی اس مجلس میں میرے ہم سبق بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. بھائی عبداللہ فاروقی صاحب کی دعوت پہ پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. مولانا نے اپنی بزم کا نام رکھا ہے بزم رحمت للعالمین. میری کوشش ہوگی 2-4 منٹ جو گفتگو کرنی ہے اسی موضوع پہ آپ سے مخاطب ہوا جائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میری لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی لیکن میری عرض ہے کہ توجہ میری طرف رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علماء تشریف فرما ہیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ، پوری آیت بھی تلاوت نہیں کی، یہ آیت کا پس منظر بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. فرمایا آقا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دین کی دعوت کی ابتدا کی، دین کی تبلیغ شروع کی، تو مکہ کے سردار اور رؤساء ذرا پریشان ہونے لگے. میرے بھائی توجہ میری طرف رکھیں. فرمایا کہ وہ تھوڑا پریشان ہونے لگے.
सोचने लगे कि ये इस मोहम्मद ने अब दीन की बात शुरू कर दी है और इसका दीन दिन ब दिन बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। हमने इसकी दावत को रोकने के लिए हर तरह का प्रोपेगंडा किया, हर तरह की तकलीफ दी, हर किस्म की परेशानी दी, लेकिन इसने किसी किस्म की तकलीफ की वजह से, हमारे बार बार के परेशान करने की वजह से अपनी दावत को नहीं रोका। बिलाखिर उन्होंने तंग आके एक हरबा इस्तेमाल किया कि आपके चचा अबू तालिब के पास आए, कहने लगे आप अपने भतीजे को जरा समझा दें, अगर वो माल चाहता है हम माल देने को तैयार हैं, अगर वो दौलत चाहता है हम दौलत को तैयार हैं, अगर वो रिश्ते में खूबसूरत लड़की चाहता है तो हम लड़की देने को तैयार हैं। आका इनामदार घर तशरीफ लाए, आपके चचा हजरत अबू तालिब मौजूद हैं। आपने कहा मेरे भतीजे जरा मेरी बात सुनो। आका इनामदार ने देखा कि मक्का के वो सरदार जो मेरे दुश्मन थे, मुझे गालियां देते थे, आज मेरे चचा के दाएं और बाएं मौजूद हैं। आपने कहा ए मेरे चचा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। हजरत अबू तालिब कहने लगे कि आपसे मुलाकात करने मक्का के सरदार आए हैं। इनका कहना यह है अगर मोहम्मद दौलत चाहता है हम दौलत देने को तैयार हैं, अगर मोहम्मद माल चाहता है हम माल देने को तैयार हैं, अगर लड़की चाहता है हम लड़की देने को तैयार है, लेकिन अपनी दावत को बंद कर दे। आका इनामदार ने 100 बातों की एक बात की और बात को खत्म कर दिया। मौलाना तवज्जो मेरी तरफ रखें। फरमाया कि आका इनामदार फरमाने लगे कि मुझे न दौलत चाहिए न माल चाहिए, न मुझे लड़की चाहिए न जमीन चाहिए। फरमाया कि ये मेरे अगर एक हाथ पे लाके सूरज को रख दे, दूसरे हाथ पे लाके चांद को रख दे, तब भी मैं अपनी दावत की इख्तिताम करने वाला नहीं हूँ। मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी नव्वरल्लाहु मरकदाहु लिखते हैं दारुन नदवा के अंदर सारे जमा हुए, मशवरे करने लगे, हमारी कोई एक बात भी नहीं चली, कोई ऐसा हरबा अपनाए कि हम दीन पे गालिब आ जाएं, मोहम्मद को मगलूब कर दे। फरमाया बातें चलती गई। क्या देखते हैं अरबी नस्ल एक आदमी दरवाजे में आके खड़ा हो गया। मक्का के सरदारों ने पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं एक नजद का बादशाह हूँ, मैंने सोचा कि मोहम्मद के खिलाफ मशवरा है, मैं भी कोई अपना मशवरा दे दूं। लोग बातें करने लगे। किसी ने कहा जंजीरें लगा के कमरे में फेंक दिया जाए, नाउजुबिल्लाह। वो कहने लगा ये मुमकिन नहीं है। किसी ने कहा मुल्क बदर कर दिया जाए। वो बूढ़ा कहने लगा ये भी अच्छा नहीं है। कहने लगा कि इस तरह करो, सारे कबीले के लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होके अपनी तलवारें लेके मोहम्मद के ऊपर हमला कर दो। मोहम्मद का कबीला किस किस से पंगा लेगा? फरमाया कि जब इन चीजों से भी हार गए, मक्का के एक मुशरिक खड़ा हुआ और आका इनामदार के सामने आके कहने लगा ए मोहम्मद आप मक्का में आए, आपने बाप और बेटे के दरमियान तफरीक डाल दी, भाई और भाई के दरमियान तफरीक डाल दी। बेटा मुसलमान है तो बाप मुशरिक है, बाप मुसलमान है तो बेटा मुशरिक है। आपने घरों को जुदा कर दिया। आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते? हम भी मक्का में जाके अल्लाह को आप भी मानते हैं, अल्लाह को हम भी मानते हैं। हम मक्का के अंदर जाके दस्ते दुआ दराज करते हैं। हम कहते हैं ए अल्लाह अगर तेरा मोहम्मद सच्चा है हमारे ऊपर पत्थर बरसा के हमें हलाक कर दे। अगर हम सच्चे हैं तो नाउज़ बिल्लाह अपने मोहम्मद पे पत्थर बरसा दे। ये बड़ा मुतकब्बिराना जुमला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी के पास एक मुशरिक आए, कहने लगे कि हमने आज जाके दुआ मांगी है, देखते हैं 3 दिन के बाद पत्थर किस पे बरसते हैं। पहला दिन गुजर गया, पत्थर नहीं बरसे। दूसरा दिन गुजर गया, पत्थर नहीं बरसे। ऐ अल्लाह इन्होंने तेरे नबी के ऊपर जुल्म किया, इन्होंने तेरे नबी की इज्जत को तार तार किया, इन्होंने तेरे नबी के खिलाफ जुबानें निकाली, तूने पत्थर क्यों नहीं बरसाए? फरमाया ऐ मेरे बंदे वजह ये नहीं है कि ये सच्चे हैं, बल्कि इनका हक तो यही बनता है कि इन पे पत्थर बरसाए जाएं। लेकिन याद रखो मेरा दस्तूर है, अगर दिन होगा तो रात नहीं हो सकती,
اگر روشنی ہوگی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پتھر نہ برسانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مشرک سچے ہیں، فرمایا اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مفتی شفیع عثمانی لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جس دنیا میں جس جگہ پہ رحمت موجود ہو وہاں عذاب آ نہیں سکتا۔ فرمایا جب تک مکہ کی سرزمین پہ میرا نبی موجود ہے، رحمت موجود ہے، اس وقت تک مکہ کی سرزمین پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت۔ فرمایا کہ میرا نبی موجود ہے، اس وجہ سے عذاب نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اللہ تیرا نبی موجود ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے، جہاں رحمت موجود ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ آقا انعامدار نے مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے۔ آقا انعامدار مدینہ گئے، میں نے کہا پتھر برس جانے چاہیے تھے، اب رحمت تو مکہ سے مدینہ چلی گئی۔ آقا انعامدار مدینہ سے بدر چلے گئے، بدر سے خندق چلے گئے، اور آگے احد چلے گئے۔ آگے چلو، میں نے کہا آپ نے یہ کہا رحمت موجود ہے، پتھر نہیں برسے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے کہا نبی اکرم تو رحمت کی صورت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، پتھر برس جانے چاہیے تھے، حتیٰ کہ میرے نبی دنیا کو چھوڑ کے آسمان پہ چلے گئے، پتھر برس جانے چاہیے تھے۔ جواب آیا میں نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آج سے پہلے جتنے نبی آئے، جو بس کوئی بستی کا نبی ہے، کوئی شہر کا نبی ہے، کوئی ملک کا نبی ہے، کوئی علاقے کا نبی ہے، یہ پورے عالم کا نبی ہے، جمادات کا نبی ہے، تمام انسانوں کا نبی ہے، جنوں کا نبی ہے، یہ شرق کا بھی نبی ہے، غرب کا بھی نبی ہے، شمال کا بھی نبی ہے، جنوب کا بھی نبی ہے، عرش کا بھی نبی ہے، فرش کا بھی نبی ہے، حتیٰ کہ میرا پیغمبر آسمان پہ جائے رحمت تب بھی مکہ میں موجود ہے، میرا نبی مدینہ میں جائے تب بھی رحمت دنیا میں موجود ہے، میرا نبی بدر میں جائے تب بھی رحمت دنیا میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ میرا ایمان ہے آقا انعامدار دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے اپنی قبر میں تشریف لے گئے، آقا قبر میں موجود ہے لیکن آقا کی رحمت پوری دنیا میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا جب میرے نبی معجزات کے لیے آپ علیہ السلام معراج پہ گئے، دنیا کا نظام رک گیا، دنیا کی ہر چیز رک گئی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اگر کوئی یہ کہے رحمت دنیا سے چلی گئی پھر دنیا کا نظام نہ چلتا۔ آقا انعامدار آج اپنے روزے میں زندہ ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے نبی روزے میں حیات نہیں ہے، پھر سنو مسلمانوں، میں تو یہ کہتا ہوں میرے نبی ایک رات کے لیے مدینہ مکہ سے معراج تک گئے، دنیا کا نظام رک گیا۔ آج میں کیسے مان جاؤں اگر میرا نبی اپنی قبر میں حیات نہ ہو؟ خدا کی قسم میرا تو ایمان یہ ہے رب العزت نے آسمان کو بلندی دی، پیغمبر کی وجہ سے زمین کو پستی دی، پیغمبر کی وجہ سے دریاؤں کو موجیں دی، پیغمبر کی وجہ سے سمندروں کو روانی دی، پیغمبر کی وجہ سے آپ اللہ رب العزت نے پھلوں میں رس دیا، پیغمبر کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو دی، پیغمبر کی وجہ سے۔ اسی لیے تو روزہ اقدس میں جب قاسم العلوم والخیرات مولانا نانوتوی جاتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کو رحمت سے اس کی سجایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ۔ یہ میرے پیغمبر کی رحمت تھی۔ آج تک جتنے نبی آئے تمام نبیوں کی رحمت اپنی بستی تک تھی، اپنے علاقے تک تھی۔ اگر مزید آگے چلے
तमाम नबियों की रहमत उनकी हयात तक थी। मेरे पैगंबर दुनिया से चले गए, रहमत बाकी है। मेरे पैगंबर पर्दा फरमा गए, रहमत बाकी है। ये वाहिद नबी है जिसकी रहमत उम्मत के लिए भी है, काफरों के लिए भी है, दुनिया की तमाम मखलूकात के लिए भी है। हत्ता कि मैं तो कहा करता हूँ आज दुनिया के अंदर सबसे खालिस ताल्लुक एक बाप और बेटे का है, बगैर मफाद के है, बगैर लालच के है, बगैर किसी वजह के है। बाप बेटे के लिए रात और दिन लोगों से बातें करता है, रात और दिन कमाई करता है, मेरे बेटे का पेट पल जाए, मेरी औलाद अच्छा खाने लग जाए। फरमाया कि एक वक्त आता है बेटा दुनिया से रुखसत हो जाता है, बाप क्या करता है अपने बेटे की मैयत के सामने खड़े होके कहता है, ऐ मेरे बेटे तेरा और मेरा ताल्लुक इस दुनिया तक था, तो दुनिया से चला गया, अब मेरा और तेरा ताल्लुक खत्म हो गया। मेरे और तेरे ताल्लुक का आखिरी हक ये है मैं तुझे जनाजा पढ़ा दूं, तुझे कफन दे दूं, तेरी कब्र में उतार जाऊं, कब कुर्बान जाऊं। आका इनामदार तेरी रहमत पे, तेरी इज्जत पे, तेरी गैरत पे, तेरी हमीयत पे, तेरे एहसानात पे। फरमाया बेटे और बाप का ताल्लुक खत्म हो गया, आका इनामदार का ताल्लुक अपने उम्मती से कितना है। फरमाया उम्मती दुनिया से पर्दा फरमा के कब्र में उतरा क्या, हत्ता के बाप का ताल्लुक खत्म है, रिश्तेदारों का ताल्लुक खत्म है, दुनिया वालों का ताल्लुक खत्म है। आज दोस्त भी छोड़ गए, रिश्तेदार भी छोड़ गए, बहन भाई भी छोड़ गए, हत्ता के मुनकर नकीर आते हैं। कब्र के सवालों का आगाज होता है। अगर फरिश्ता पहला सवाल ये करता है मन रब्बु का, तो ऐ उम्मती याद रख ले। अगर दूसरा सवाल है तो तेरे नबी के बारे में है, मन नबीजू का, तेरे नबी ने दुनिया के अंदर भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब तू कब्र में चला गया सारे रिश्ते टूट गए, सारे ताल्लुक खत्म हो गए, वहां भी तेरे नबी ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर आगे चलो, फरमाया इससे भी एक मैदान आगे आने वाला है जहां दुनिया के और ताल्लुक भी मिट जाएंगे। मैदान माशर का दिन है। फरमाया ऐलान होगा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। आज किसी वजीर को, किसी मुशीर को, किसी बड़े को बोलने की इजाजत नहीं है। खामोश हो जाओ, अपनी जुबानें बंद कर लो। ऐ अल्लाह कैसा दिन आ गया, आज बेटा बाप को पुकारता है, उम्मी व अबी व साहिबतिही व बनी। बाप कहता है ऐ मेरे बेटे आज के दिन मुझे मत पुकारो। माँ कहती है ऐ मेरी औलाद आज के दिन मुझे मत पुकारो। फरमाया सारी उम्मतें इकट्ठी होके हजरत आदम के दरवाजे पे जाएंगी, ऐ आदम हमारी सिफारिश कीजिए। अब बाप बाप बनने को तैयार नहीं, माँ बात सुनने को तैयार नहीं। आज मौलवी और दोस्त और मोहल्ले वाले मुंह फेर गए, हमारी सिफारिश कीजिए। काला आदम सफीउल्लाह नफसी नफसी हजरत आदम कहेंगे आज तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सारी उम्मतें मूसा के दरवाजे पे जाएंगी, काला मूसा कलीमुल्लाह नफसी नफसी, काला ईसा रूहुल्लाह नफसी नफसी। फरमाया आज ऐसा वक्त आ गया जब सारे माँ बाप छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, हत्ता के इस कायनात के जद्दे अमजद हजरत आदम ने भी जवाब दे दिया, हजरत मूसा ने भी जवाब दे दिया, हजरत ईसा ने भी जवाब दे दिया। ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, अगर उस दिन भी तुझे काम आएगा, तेरे पैगंबर का रिश्ता काम आएगा। ये मेरे पैगंबर की रहमत थी, दुनिया में भी मौजूद थी, दुनिया में जाने के बाद कब्र में भी मौजूद है। तो कब्र को क्रॉस करके मैदान माशर में पहुंचा, मैदान माशर में भी तेरे नबी की रहमत मौजूद है। फरमाया रब्बे कायनात के प्यारे पैगंबर सजदा रेज हो जाएंगे, अल्लाह के सामने इल्तिजा करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। फरमाया जब सब छोड़ गए, आज भी अगर उम्मती को किसी की सिफारिश काम आई है तो मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा आमद मुस्तफा खातमुल अंबिया सरवरे कौनैन साकिए कौसर शाफिए माशर मक्का के दुर्रे यतीम आमना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर की सिफारिश काम आई। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा सीरत रहमतुल लिल आलमीन। जब सारे बात समझ आ रही है समझ, बड़े खामोश बैठे हैं भाई।
बोलने का सबूत दे, बात समझ आ रही है? एक मर्तबा आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु, रबीउल अव्वल का महीना है। मौलाना ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करी, मेरा दिल ठंडा हो गया। कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरूद शरीफ के मुतल्लिक इल्जाम लगता है कि देवबंदी नहीं मानते। मौलाना अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। कहते हैं कि देवबंदी दुरूद को नहीं मानते। कुर्बान जाओ मौलाना उकाड़वी आपके जूतों पे। मौलाना अब्दुल गनी मौजूद है, फरमाने लगे, एक आदमी आया कहने लगा मौलाना उकाड़वी आप दुरूद को नहीं मानते। हजरत उकाड़वी कहने लगे, किसी ने कहा मैं दुरूद को नहीं मानता। फरमाने लगे, मेरा तो ईमान है, अगर मैं दुरूद ना पढ़ूं ईमान मुकम्मल नहीं। मैं दुरूद ना पढ़ूं नमाज मुकम्मल नहीं। मैं दुरूद ना पढ़ूं नमाज़े जनाजा मुकम्मल नहीं। इसलिए कि कुरान का हुक्म है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसलिए सब मिलके पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे दोस्तों, ये तो मेरे पैगंबर का एहसान था। दुनिया में अपनी उम्मती को, सब बोले अपनी उम्मती को छोड़ा नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे उम्मती, खाना कैसे है, पीना कैसे है, चलना कैसे है, बात कैसे करनी है, पहनना कैसे है, पढ़ना क्या है, इबादत कहाँ करनी है, दुनिया में बता गए। उम्मती कब्र में गया, कब्र में भी नबी काम आए, हशर में गया नबी काम आए। अब उस नबी का हमारे ऊपर क्या हक है? तवज्जो कीजिए, आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लामा बेज़ावी ने लिखा, एक नबी के अपने उम्मती पे 5 हक हैं। फरमाया कि जब कोई नबी ईमान का दावा कर दे, अपनी नबुव्वत में सच्चा हो, लतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। फरमाया जब कोई नबी नबुव्वत का दावा कर दे, अपने दावे में सच्चा हो, नबी के नए उम्मती के ऊपर पहला हक यह है कि अपने नबी पे ईमान ले आए। मेरे दोस्तों तवज्जो चाहिए, ऐसे बात नहीं की जाएगी, तवज्जो। फरमाया कि एक नबी का पहला हक यह है कि अपने नबी पे ईमान लाया जाए। मैंने कहा, ए अल्लाह, हम तो जाहिल है, 1400 साल तेरी उम्मत में बाद में आए, मुझे क्या पता ईमान का मयार क्या है, ईमान कितना लाना है। सूरतुल बकरा कुरान कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम। अगर ईमान लाना चाहते हो, ईमान का मयार और कसवट्टी देखना चाहते हो, सहाबा को देखो, सहाबा जैसा ईमान लाओ। नबी का पहला हक यह है ईमान लाया जाए। ईमान कैसा? सहाबा जैसा। मैंने कहा, ए अल्लाह, सहाबा का ईमान कैसा था? फरमाया जाओ अबू बकर के दरवाजे पे जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि सहाबा का ईमान कैसा था। सहाबा का ईमान कैसा? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का वालों ने पत्थर मारे, जुल्म किया। कहने लगे, ए अबू बकर सिद्दीक, तू मोहम्मद की बात मानता है, मोहम्मद के साथ चलता है, हम और आप इकट्ठे नहीं चल सकते। अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। जब सारी मार खाने के बाद होश आया, अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं पूछा कि मेरी तबीयत का क्या हाल है। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं पूछा मुझे मारने वाले कौन थे। अबू बकर सिद्दीक को जैसे होश आया, कहने लगे, ए मक्का के लोगों, मुझे बताओ मेरे मोहम्मद का क्या हाल है। अगर ईमान का मयार देखना है तो फिर जरा और आगे चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद ने कपड़े उतरवा लिए। कहने लगे, अबू बकर जाओ, मोहम्मद के साथ रहना है, मेरा लिबास उतार दो। अबू बकर सिद्दीक ने लिबास उतार के अपने तन पे टाट पहन लिया और पर चलने लगे। रब्बे कायनात को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई, आसमान के फरिश्तों को मुखातिब होके कहने लगे, आसमान के फरिश्तों, आज अर्श फर्श पे अबू बकर सिद्दीक ने नबी की इत्तिबा करते हुए, नबी पे ईमान लाते हुए और टाट का लिबास पहन लिया है। तुम भी सारे के सारे आज अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा करते हुए अपने नूरी लिबास को उतार के टाट का लिबास पहन लो। ये ईमान की महराज थी। फरमाया नबी का दूसरा हक ये है कि नबी की इताअत की जाए, नबी का अदब किया जाए। अदब कैसा? फरमाया हिजरत की रात है, अबू बकर सिद्दीक की गोद में पैगंबर आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं? आपकी एड़ी पे सांप डंग मारता है। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को नहीं जगाया, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अदब का तकाजा ये
है, पैगंबर की मोहब्बत का तकाजा ये है, पैगंबर को जगाया ना जाए। अबू बकर सिद्दीक ने दंग तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन पैगंबर के अदब में कमी नहीं आई। मोहब्बत देखनी हो तो कैसी है, फरमाया ओहद का मैदान है, पैगंबर का सहाबी है, दुनिया अबू तला कहती है, आका इनामदार की तरफ कुफार तीर फेंकने लगे। हजरत अबू तला ने अपना हाथ आगे किया, अपने हाथ पे तीर बर्दाश्त किए, हाथ छल हो गया, दूसरा हाथ आगे किया, अपना सीना आगे किया, सीना छलनी करवा दिया, पैगंबर की तरफ तीर नहीं आने दिया। फरमाया हजरत अबू तला गिर गए। पैगंबर का दूसरा सहाबी अबू दुजाना आगे बढ़ा, अपनी पीठ पे तीर बर्दाश्त करने लगा। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत थी मोहम्मद के गुलामों की। आज भी अगर कोई मोहम्मद की मोहब्बत को, पैगंबर के अदब को, पैगंबर के दीन को देखना चाहता है तो देवबंद के दरवाजे पे आना पड़ेगा। इसलिए कि ये तो वो लोग हैं, जब एक जर्नल आजम ने देवबंदी आलिम को मुखातिब होकर कहने लगा, मौलवी साहब जब भी कोई मसला बनता है तुम खत्म नबुव्वत का रंग दे देते हो। आज मैं लाहौर की सरजमीन पे लकीर खींच रहा हूँ, किसी में जुर्रत है, किसी में हिम्मत है, नबी की इज्जत की बात करते हो, इस लकीर को उबूर करके दिखाओ। फरमाया 10,000 नौजवानों ने पैगंबर की इज्जत का, पैगंबर की मोहब्बत का, पैगंबर के अदब का, पैगंबर की गैरत का दिफा करते हुए अपनी जाने आफरी के हवाले करके दुनिया को पैगाम दे दिया। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का वसूल फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जी हजरत अल्लामा मौलाना अमीर हमजा साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके दिलों को अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र सुनाकर मुनव्वर फरमा रहे थे।